Good afternoon, friend. This is the fourth lecture on light. In previous three lecture, I taught you about image formation by plane mirror, spherical mirror, and convex lens. In this video, I will tell you about how the image formation takes place in case of concave lens and how to use sign convention while solving problem in case of lens. And also, today we will solve some problems on plane mirror, spherical mirror, and if time is there, then few problems on lens. So let's start with the concave lens. Concave lens. As earlier I told that in case of the concave lens, the middle portion is thin and the top and bottom portion are thick. So this is a what concave lens. This is optical center, this is a प्रिंसिपल एक्सिस। और इस स्फेयर को जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर मेरा बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 दूसरे साइड का, और इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 and the middle of the optical center and center of curvature is called focus 1 and the middle of optical center and center of curvature 2 is called focus 2. I have defined different focus f1 and f2 because might be possible that the radius of curvature of the first side may be different from the second side. That's why I am naming here the focus as f1 and f2. So let's see that how the image formation takes place in case of concave lens. So if my object is placed at infinity, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, in that case my image will form at focus. So let us consider a light ray which is parallel to principal axis coming from infinity. As this is a diverging lens, so मेरा लाइट रे आने के बाद डाइवर्ज हो जाएगा और इस रे को जब मैं एक्सटेंड करूँगा इट विल मीट एट फोकस. Similarly, if this ray is parallel to principal axis, then after refraction it will pass through focus. इसको एक्सटेंड करूँगा तो दोनों रिफ्रैक्टेड रो को मेरे को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तब मेरे को जाके क्या मिलेगा, इमेज. दैट्स वाई दिस इज in case of the concave lens the image which is formed is virtual in nature, and the size of the image is too small. साइज मेरा कैसा है, बहुत ही स्मॉल है. दिस इज द केस व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द इमेज इज नॉन इन्वर्टेड और इरेक्ट, मतलब जिस साइड में मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड में मेरा इमेज बनेगा. सो इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस माय इमेज इज इरेक्ट. सो लेट्स कंसीडर वन मोर केस. So this is a focus, this is center of curvature 1, this is focus 1, this is focus 2 and this is center of curvature 2. If I place my object between anywhere from infinity to optical center, कभी भी मैं अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूँगा तो मेरा जो इमेज बनेगा दैट विल फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो मेरा कोई सा भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो, लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज बियॉन्ड C1, तो इस केस में मेरे को इमेज बनाना है तो एक रे में ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कहाँ से जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस. एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से जाएगा. सिमिलरली कंसीडर अनदर रे विच इज़ पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. एक और रे मैं बना रहा हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से मेरा जाएगा तो ये इट विल पास एज इट इज़ विदाउट
एनी रिफ्रैक्शन, जो दोनों मेरा रे जहाँ पे मीट करेंगे दैट वहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा. तो माई इमेज विल फॉर्म हेयर. So whatever is the position of the object in case of the concave lens, the image will form between optical center and focus. And the nature of the image is I have to extend the ray. मेरे को रे को extend करना पड़ेगा in order to get the image. That's why we will call that the nature of the image is virtual. और साइज मेरा कैसा हो गया है, डिमिनिश्ड हो गया, मीन्स स्मॉल हो गया है. एंड ऑल्सो इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सेम साइड में बनना है, जिस साइड में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के उसी साइड में मेरा इमेज भी बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस. दैट्स वाई वी विल कॉल दैट दिस इमेज इज इरेक्ट इन nature. So this is all about the image formation by a concave lens. Now let's see that how to take the sign convention in case of lens. Sign convention हम लेंस के केस में कैसे लेते हैं. Let's see. First of all, consider a lens. What type of lens is this? This is a convex lens. ये मेरा convex lens है. And this is optical center, this is focus f1, this is center c1, this is focus f2, this is center c2. जब मैं एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो ये फोकस से जाता है f2 से. इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में मेरा जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव. हमेशा क्या लेना है मेरे को, पॉजिटिव लेना है. जो भी डिस्टेंस मैं ऑप्टिकल एक्सिस में इसको बोल देता हूँ, अगर इस ऑप्टिकल एक्सिस के राइट साइड में मेजर करूँगा दैट विल बी पॉजिटिव. एंड जो भी लेंथ मैं ऑप्टिकल एक्सिस के लेफ्ट साइड में मेजर करूँगा दैट विल बी निगेटिव. हमेशा कोई सा भी प्रॉब्लम आएगा यू हैव टू पुट योर ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस. हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा यू पुट योर ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस एंड यूज दिस साइन कन्वेंशन इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. और मेरा ऑब्जेक्ट मैं कहाँ पे रख सकता हूँ इसमें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन c1 एंड f1, एट c1 बिटवीन o एंड f1. तो मैं ऑब्जेक्ट को जो है लेफ्ट साइड में रखूँगा तो मेरा u कैसा होगा, यहाँ पे u यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव. इन केस ऑफ u तो हमेशा मैं चाहे कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, या कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, जब मेरे को हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करना है तो u हमेशा मैं निगेटिव ही लूँगा. बट द फोकल लेंथ डिपेंड ऑन मेरा की जो है लाइट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो वो मेरा कट प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कर रही है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में. अगर राइट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है तो आई विल टेक द फोकल लेंथ एज पॉजिटिव. इफ इट intersects the principal axis on the left side we will take the focal length as negative. So this is the sign convention for convex lens. Convex lens. Let's consider a concave lens also. So this is optical center, this is focus f2 and this is center of curvature c2, this is f1 and this is c1. तो मेरा बेसिकली दो ही पोजीशन में कंसिडर करता हूँ इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस. एक तो इन्फिनिटी पे जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो मेरा कहाँ पे इमेज बनेगी, फोकस पे. और फोकस मालूम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ड्रॉ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. तो जैसा कि मेरे को दिख रहा है कि मेरे को एक्सटेंड करना पड़ रहा है रे, और जहाँ पे मेरा रिफ्रैक्टेड रे मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, एक्सटेंड करने के बाद वही मेरा फोकस हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे फोकस मेरा लेफ्ट साइड में है इसलिए फोकल लेंथ इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. तो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के केस में मेरा फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. और ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो नेगेटिव रहेगी. ठीक. एंड नाउ अबाउट व्हाट अबाउट दैट मैग्निफिकेशन फैक्टर. लेट्स टॉक अबाउट some basic formulas. Basic formula used in lens are basic formula which are used in lens,
तो कुछ बेसिक फार्मूला लेंस में हम यूज करते हैं, दैट आर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। प्रॉब्लम में मेरा दिया होगा u की वैल्यू, they don't show that what is the sign of u, you have to think on your own that what sign I will take for u or f। और एक फार्मूला मैं और लिख सकता हूँ मैग्निफिकेशन फैक्टर का फार्मूला, इन केस ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर द मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ साइज ऑफ इमेज divided by size of object, which is equal to minus of v by u in case of the mirror, but here it will be only v by u, that is position of image divided by position of ऑब्जेक्ट। बेसिकली सिर्फ दो ही चेंजेस मेरे होते हैं इन केस ऑफ द लेंस फॉर्मूले में मेरा क्या आ जाता है, यहाँ पे मिरर के केस में प्लस रहता है, लेंस के केस में यहाँ माइनस हो जाता है। इन केस ऑफ द मैग्निफिकेशन फैक्टर साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, बट मिरर केस में मेरा यहाँ पे साइन था माइनस ऑफ, बट यहाँ पे साइन माइनस का नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे को क्या लिखना रहेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो लेना रहेगा, किसकी चीज़ के लिए, मैग्निफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। एंड वन मोर थिंग इज पावर फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस मेरा क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड इन डायोप्टर एंड इट इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को मेरे को किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। फोकल लेंथ को मैं मीटर में लूँगा तो जो मेरा पावर आएगा दैट विल बी इन डायोप्टर एंड पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो फॉर कॉनकेव लेंस के केस में मेरा फोकल लेंथ कैसा था, नेगेटिव था, फोकल लेंथ नेगेटिव था। अगर फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव हो गया तो पावर विल आल्सो बी नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के केस में पावर लेंस की क्या होती है, पावर लेंस की नेगेटिव होती है। बट इन केस ऑफ द convex lens the power of the lens is क्या, फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, दैट्स वाई फोकल लेंथ इज पॉजिटिव द पावर विल आल्सो बी पॉजिटिव। सो इस केस में मेरा पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेट अस सपोज इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंस, 2 या 2 से ज़्यादा लेंस का अगर मेरा कॉम्बिनेशन है तो हाउ टू कैलकुलेट ओवरऑल पावर। तो ओवरऑल पावर P मैं कैलकुलेट करूँगा अगर एक या एक से ज़्यादा लेंस एक दूसरे के एडजेसेंट में सटे हुए रखे हुए हैं, तो पावर मेरा ओवरऑल क्या होगा कि पावर ऑफ लेंस P1 प्लस पावर ऑफ लेंस P2 प्लस पावर ऑफ लेंस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। माइट बी पॉसिबल दैट P1 मेरा जो है अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, हो सकता है उसके बगल में एक कॉनकेव लेंस रखा हो तो P2 नेगेटिव होगा, बट ओवरऑल पावर मेरा कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। So this is all about the basic theory on the light. Let's solve a few problems on lens. So here it is given an object is placed at a distance 100 centimeter from a converging lens. Converging lens को मैं क्या, convex lens को भी क्या बोल सकता हूँ मैं, converging lens. So this is a converging और कॉन्वेक्स लेंस और इसका 2 फोकस होंगे, एक f2 एक f1 C1। तो एन ऑब्जेक्ट इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मीन्स अगर मेरा एक ही फोकल लेंथ दिया हुआ है देन आई विल एज्यूम दैट द बोथ ऑफ द फोकल लेंथ आर सेम। मतलब O से f1 की डिस्टेंस और O से f2 की डिस्टेंस आई हैव टू कंसीडर टू बी अ सेम। हियर इट्स अ गिवन दैट फोकल लेंथ इज 40 centimeter, so this is how much, 40 centimeter. If focal length is 40 centimeter, what is the distance of C1 from O, that will be double of 40। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, टोटल 80 हो जाएगा।
सिंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, मतलब 80 से दूर रखा हुआ है, तो माई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर हियर and my when the object is placed beyond C1, in that case my image formed will be between F2 and C2। मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, F2 और C2 के बीच में बनेगा। सो कैलकुलेशन करने के बाद भी मेरी जो वैल्यू आनी चाहिए इमेज की, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जो मेरा इमेज बन रहा है वो राइट साइड में बनेगा और उसकी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, 40 एंड 80 के बीच में आनी चाहिए। सो रे डायग्राम मेरे को मालूम था, उससे मैं इतना अप्रॉक्सीमेटली पता लगा लिया कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द इमेज। सो लेट्स यूज द लेंस फार्मूला। यूजिंग लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या बोलता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे मेरे को फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव लेनी या निगेटिव, जब मैं एक रे ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये फोकस से पास करेगा तो मेरा राइट साइड में फोकस को प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, तो जो फोकल लेंथ मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये जो 40 वैल्यू दी हुई है, 40 वैल्यू जो दी हुई है उसको मेरे को प्लस में 40 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। सिंस आई हैव पुट माई ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस, तो यू की वैल्यू मेरे को कैसे लेनी पड़ेगी, माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एफ एंड यू इन द अबव लेंस फार्मूला, तो 1/v माइनस 1 माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 1/40। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस इधर आके मेरा माइनस हो जाएगा। ऑन कैलकुलेटिंग आई विल गेट v एज 66.6 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली वैल्यू से मैं ये देख पा रहा हूँ कि माई इमेज विल बी बिटवीन F2 एंड C2, क्योंकि 66.6 वैल्यू जो है 40 और 80 के बीच में लाई कर रही है। एंड दिस इमेज इज व्हाट आई एम गेटिंग अ रियल इमेज। all these things you can see from my ray diagram which I have plotted when the object is placed beyond C1 and form the image, you can see from there. So what the nature will be real and inverted image, और size मेरा कैसा होगा, size will be small. Let's calculate the magnification factor from there it will be clear that what will be the size। तो magnification factor को मैं क्या ले सकता हूँ, v by u। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर इक्वल टू v बाई यू, v विल बी हाउ मच, 66.6 सेंटीमीटर एंड u इज हाउ मच, माइनस ऑफ 100। तो ये 0.666 के इक्वल आ गया माइनस में। एंड दिस माइनस साइन शोज व्हाट कि मेरा ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है, मेरा इमेज जो बन रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के बन रहा है। and this value is less than 1, this shows that the size of the image is less as compared to the size of the object। तो ये सारी चीज़ें इस प्रॉब्लम से मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। आई होप दिस ऑल थिंग आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी another problem। here it's a given a concave lens have a focal length of 15 सेंटीमीटर। अ कॉन्केव लेंस मेरा दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image 10 centimeter from the lens। मेरा पोजीशन ऑफ द इमेज दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, इट इज आस्किंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स हेयर इट इज गिवन v मेरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। प्लस 10 लेना है या माइनस 10 लेना है, अभी मैं रे डायग्राम से इसको पता करूँगा। और फोकल लेंथ को कॉन्केव लेंस के केस में मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लूँगा, ये डाइवर्जिंग रे होती है तो इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो फोकस को प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कट करेगा, तो ये डिस्टेंस मेरा फोकस होगा, दैट विल बी निगेटिव। तो फोकल लेंथ डेफिनेटली मेरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू एफ, उसकी वैल्यू मैं कितना लूँगा, माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एंड v इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर। आई हैव टू टेक प्लस 10 और माइनस 10। तो मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेता हूँ, जो मेरा इमेज बनेगा विल बी बिटवीन 0 ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो मेरा जो इमेज बन रहा है वो भी लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो आई हैव टू टेक द पोजीशन ऑफ द इमेज हेयर एज माइनस 10 सेंटीमीटर।
Now using the lens formula, using lens formula, what is lens formula? 1 upon v minus 1 upon u is equal to what? 1 upon f. यहाँ पे v और f की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो 1 upon u will be 1 upon v, how much? minus 10, minus of 1 upon minus 15. On calculating, I will get u as minus 30 centimeter. Here it is also asking about the magnification factor. तो magnification factor मैं क्या बोल सकता हूँ? Magnification factor will be v by u. V is the position of the image and u is the position of the object. तो v is equal to how much? minus 10. मेरे को साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ये नहीं कि 10 दिया हुआ तो आई पुट 10 हेयर. आई हैव टू टेक into consideration the sign also. तो minus 10 upon minus 30, that will be मैग्नीफिकेशन फैक्टर कितना आ गया? 1/3. मतलब में जरा जो इमेज होगा दैट विल बी 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ऐसा मैं रे डायग्राम से ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि मेरा जब भी ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव लेंस के केस में रखा होता है तो जो इमेज बनेगा दैट विल बी स्मॉलर इन साइज एंड विल बी इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस f1. तो यहाँ पे भी मेरा इमेज जो बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, इसका मतलब 15 और 0 के बीच में है. So this is all about this problem. Let's solve a few problems on plane mirror. Array, it's a given array of light strikes on a plane mirror PQ. Let's consider this is a plane mirror PQ on which a light strikes at an angle of 30 degree. मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे डिफाइन करूँगा मैं? पहले जिस सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है आई हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन दैट सरफेस. इस सरफेस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, उसके बाद एक रे कंसिडर करूँगा, दैट रे विल बी कॉल्ड व्हाट? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, this is an incident ray. The angle made by the normal and the incident ray is called angle of incidence. Here it's given that angle of incidence is how much? 30 degree. Is reflected from the plane mirror and then strikes the second plane mirror QR. I am saying this plane mirror as QR at a which is at a right angle to the first mirror. मतलब दूसरा मिरर जो मेरा QR है वो राइट एंगल है PQ के. इसका मतलब इस सरफेस पे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ किया था और QR जिस डायरेक्शन में रखा हुआ है दोनों पैरेलल है, तो आई कैन से दैट दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू QR. So according to the second law of the reflection, angle I is equal to angle R. Angle of incidence will be equal to angle of reflection. ये फॉलो करते हुए मेरा रे जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा. दिस एंगल विल बी हाउ मच? 30 डिग्री. जब ये मेरा एंगल 30 डिग्री है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल हो गया. एंड आई हैव टू शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ द सेकेंड रिफ्लेक्शन. तो मेरा इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई. अब ये इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पहले मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आई हैव ड्रॉन अ नॉर्मल. तो नॉर्मल ड्रॉ किया मीन्स ओवरऑल दिस एंगल इज हाउ मच? 90 डिग्री. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो ये भी मेरा कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री. सो दैट इज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड एंगल जो मेरा होगा सेकंड मिरर के कारण वो कितना हो जाएगा? 60 degree. So after second reflection, second reflection, angle of reflection will be how much? 60 degree. Next problem is that you have to draw the mirror image of the following word. Here it's given ambulance. एम्बुलेंस मेरा दिया हुआ है. एक्चुअली में जो इसका इमेज बनेगा दैट विल लुक लाइक एम्बुलेंस. कभी एम्बुलेंस पे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ये इसी तरीके से लिखा रहता है. वाई? बिकॉज जब भी कोई गाड़ी उसके आगे ट्रेवल कर रही होती, जब वो अपने मिरर में देखेगी इस एम्बुलेंस को तो वो लेटरली इन्वर्टेड करके दिखाई पड़ेगा. तो लेटरली इन्वर्टेड करके एग्जैक्ट में एम्बुलेंस वर्ड उसको दिखाई पड़ेगा. MBL
ANCE. I am giving you a homework. You have to draw the image of all the letters and you will come to know that this is nothing but ambulance. So there is nothing more to discuss in this problem. But let's consider another question on the plane mirror. Here it's given that a boy is walking towards a mirror at a speed of 1 मीटर पर सेकंड. एक लड़का जो है इस मिरर की तरफ, इस मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड. मतलब इस मिरर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से ये आ रहा है. एंड व्हाट इज आस्किंग एट व्हाट स्पीड डिड हिज इमेज अप्रोच हिम. मतलब ये जो इमेज आ रहा होगा, ये जो इमेज आ रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से आ रहा है, अप्रोचिंग हिम. तो अगर ये 1 मीटर इधर से आ रहा है, 1 मीटर, अगर ये लेट अस सपोज द पोजीशन ऑफ दिस बॉय फ्रॉम दिस प्लेन मिरर इज 10 मीटर, मतलब 10 मीटर है. सेम विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस बॉय, मतलब 10 मीटर पे इसकी इमेज होगी. और जिस स्पीड से मेरा बॉय मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा उसी स्पीड से मेरा क्या इमेज भी मिरर की तरफ अप्रोच कर रही होगी. तो जो इमेज होगा बॉय का जो मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा वो भी 1 मीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में अप्रोच कर रहा होगा. बट हेयर इट्स नॉट आस्किंग मेरा इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से आ रहा है. ही इज आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय. मतलब इन दोनों के बीच में इनिशियली गैप कितना था? 20 मीटर. इनिशियली गैप इनके दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में कितना था? 20. इनिशियल गैप मेरा कितना है? 20 मीटर. बट आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये भी 1 मीटर आगे बढ़ जाएगा, ये भी 1 मीटर इधर आ जाएगा. तो आफ्टर 1 सेकेंड दोनों के बीच में गैप मेरा कितना हो जाएगा? एक इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया, तो दैट विल बी 18 मीटर. तो 1 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को कितना दूरी कम कर पा रहे हैं? 2 मीटर. सो I can say that image will approach बॉय के रिस्पेक्ट में इमेज किस स्पीड से अप्रोच करेगा? 2 मीटर पर सेकंड. क्योंकि हर सेकंड में ये एक दूसरे के बीच में कितना गैप कम कर पा रहे हैं? 2 मीटर. दैट्स वाई आई विल से दैट इमेज विल अप्रोच बॉय एट 20 मीटर per second. This is a few problems on plane mirror. Let's solve some more problem on spherical mirror. Here an object 3 cm high is placed at a distance of 8 cm from a concave mirror. It's given a concave mirror and object size कितनी दी हुई है मेरी? 3 cm. And it's a virtual image is formed. Virtual image मेरा कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस में बनता है, व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. तो लेट अस कंसीडर माय ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. तो जो इसका इमेज बनेगा दैट विल बी द वर्चुअल इमेज होगा. और जो साइज होगा दैट विल बी व्हाट? लेट्स ड्रॉ. इट विल बी लार्जर और स्मॉलर. वी विल एबल टू सी. एज्यूम करते हैं लार्जर है. आई विल कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन फैक्टर. तो मैं ये देख पाऊंगा कि ये लार्जर है या स्मॉलर है. मान लो मैं भूल गया हूँ कि ये लार्जर होगा या स्मॉलर होगा. लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन फैक्टर फ्रॉम देयर विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का साइज 3 था और इमेज का साइज मेरा कितना है? 4.5. सिंस द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर डेफिनेटली मेरा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा. इसका मतलब जो इमेज होगा उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज में क्या होगा? बड़ा होगा. हियर लेट्स यूज मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला. मैग्नीफिकेशन फैक्टर मैं दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ. एक साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेके दैट इज इक्वल टू 4.5/3. और एक तरीका मेरा क्या है? मैग्नीफिकेशन फैक्टर इक्वल टू -v/u. यहाँ से
it is given that position of ऑब्जेक्ट। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मीन्स यू इज़ गिवन एज, यहाँ पे -8 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है पोल के, तो यू को -8 में लूँगा और यहाँ पे यू को पुट करूँगा, दैट इज़ 4.5/3। यहाँ पे पुट करने के बाद यू को आई विल कैलकुलेट वी, तो वी मेरा कैलकुलेट करने पे आएगा, दैट विल बी हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि u की वैल्यू भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, v विल बी पॉजिटिव, v विल बी पॉजिटिव। तो जो मेरा इमेज बनेगा दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, डेफिनेटली मेरे को दिख भी रहा है राइट हैंड साइड, और कितने डिस्टेंस पे होगा, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। हेयर आई हैव नॉट यूज्ड द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला मैं यूज करूँगा क्या कैलकुलेट करने के लिए, फोकल लेंथ। तो यूजिंग मिरर फार्मूला में यूज करता हूँ 1/v + 1/u = 1/f। Here I had calculated the value of the v as 12 centimeter and u is given as how much, 8 सेंटीमीटर। तो u को मैं -8 सेंटीमीटर लूँगा और v को 12 सेंटीमीटर लूँगा, वहाँ से मैं फोकल लेंथ f को कैलकुलेट कर सकता हूँ। पुटिंग u as 12 सेंटीमीटर and u as -8 centimeter, I will calculate focus and it comes out to be -24 centimeter। और मेरा कॉन्केव मिरर के केस में मेरा फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता भी है। तो और यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन के बाद निगेटिव आ रहा है। तो व्हाट साइन कन्वेंशन आई टोल्ड यू, इफ यू सॉल्व बाय दैट देन यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर विद नो डाउट। And here it is also asking in third part that draw the ray diagram to show the formation of image. The ray diagram I already told, when the object is placed between the focus and the pole the image will be formed in the right hand side, और वो virtual image होगा और erect होगा। That's यहाँ पे मैंने ray diagram तुम खुद से जो है शो करके यहाँ पे बना सकते हैं, that I already taught। So let's solve few more problem on mirror। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मेरा एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, रियल मैग्नीफाइड इमेज 3 टाइम्स इज फॉर्म्ड। अब मैं देखता हूँ कि कॉनकेव मिरर के केस में मेरा इमेज मैग्नीफाइड कब बनता है, और वो भी रियल होना चाहिए। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है, इन दैट केस माई इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी एंड दैट विल बी द लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे मैं ये मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि जब मेरा इमेज बोल रहा है रियल भी इमेज है एंड इट इज़ 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली मेरे को जो अपना ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, तभी मेरा इमेज जो बनेगी दैट विल बी द लार्ज होगी और 3 टाइम्स होनी चाहिए। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये मेरा हो जाएगा इमेज का पोजीशन v, एंड इट्स इनडायरेक्टली गिवन द मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर मेरा 3 दिया हुआ है, आई विल नॉट टेक 3, आई हैव टू टेक इट एज -3 बिकॉज मेरा कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ होता है, आई विल गेट द मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि मेरा इसका इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो आई हैव टू पुट हेयर द माइनस साइन। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर आई कैन राइट एज -v/u दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से v की वैल्यू आई विल कैलकुलेट एज 3 इंटू यू इज़ हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में है पोल के, तो -20 सेंटीमीटर में लूँगा एंड v कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। अभी तक मैंने मिरर फार्मूला नहीं यूज़ किया, नाउ आई कैन यूज़ द मिरर फार्मूला एज 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -60 प्लस 1/u की वैल्यू मैं पुट करता हूँ हाउ मच इट इज गिवन -20 सेंटीमीटर। फ्रॉम दीज वैल्यू ऑफ u एंड v आई कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ
सो इसको सिंप्लीफाई करके मैं फोकल लेंथ निकालूंगा एंड फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मेरा जो आएगा कैलकुलेशन के बाद, कैलकुलेशन यू कैन डू इजली, फोकल लेंथ एफ विल बी इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये तो ए पार्ट हो गया, फोकल लेंथ निकालना था। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, इसमें इनडायरेक्टली दिया नहीं हुआ था कि आपको वी कैलकुलेट करना है, बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फोकल लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज जब आएगा तो मैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ द इमेज मालूम होते हुए मैं फोकल लेंथ निकाल पाऊंगा। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन फार्मूला। Second part is given, where must the object be placed to give a virtual image 3 times the height of the object। तो मेरा मिरर तो सेम ही है, कॉन्केव मिरर, बट इन दिस केस आई एम गेटिंग व्हाट टाइप ऑफ इमेज, अ वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज मेरा कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस में मिलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मेरे को ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, और जो इमेज मेरे को मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी, दैट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में मेरा जो इमेज होगा वो लार्जर होगा, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कब, जब मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। सो फोकल लेंथ मेरे को दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माई मिरर इज सेम, मेरा मिरर सेम है। तो इसका जो स्फेयर जब मैं कंप्लीट करूँगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा दोनों का, तो सेम मिलेगा, तो फोकल लेंथ भी सेम आएगा। तो फोकल लेंथ मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन से मैं ले सकता हूँ। तो फोकल लेंथ will be equal to how much, minus of 15 centimeter। Where must the object be placed to give a virtual image? It is asking the value of u, u की वैल्यू पूछ रहा है, एंड द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर दिया हुआ है इसमें। मैग्निफिकेशन फैक्टर इज गिवन, मैग्निफिकेशन फैक्टर इसमें कितना दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे क्या लूँगा, +3 या -3, यहाँ पे +3 लूँगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है सेम डायरेक्शन में है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर को मैं 3 लूँगा, और मैग्निफिकेशन फैक्टर का एक फार्मूला और होता है, माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ द इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो माइनस ऑफ v बाई यू इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू हाउ मच, -3u। अब मैं मिरर फार्मूला यूज़ करूँगा, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। अब मैं मिरर फार्मूला यूज़ करूँगा। मिरर फार्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू हाउ मच, 1/f। अब v की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -3u, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, मतलब u की वैल्यू पूछ रही है, u की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पुट v एज -3u, और इसको u ही रहने दिया, और 1/f की वैल्यू मेरे को कितनी रखनी पड़ेगी यहाँ पे, -15 सेंटीमीटर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा और सॉल्व करूँगा, आई विल कम टू नो दैट u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ मेरा कितना है, 15, -15 लेफ्ट साइड में। तो डेफिनेटली मेरा जो u की वैल्यू आनी चाहिए, जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, वो फोकस और पोल के बीच में आनी चाहिए, मीन्स इन बिटवीन 15 एंड 0। और मेरी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 10 आ रही है, विच इज इन बिटवीन 15 एंड 0 के बीच में, इसलिए माई आंसर इज right। If you go by what procedure I told you, you will definitely get the right solution। So few problems are remaining, but I think the lecture is going to be too lengthy, so I stop today here only। I will solve a few problems on lens and convex mirror in the next lecture. For today, that's all. Thank you and have a nice day।